Well, afternoon, very good afternoon, the students of class ninth. So, today we are going to continue the poem that is on killing a tree. Okay, so yesterday I told you why poet has used the word killing. The poet has not used cutting. Generally we cut the tree. Generally we say we cut the tree, but here actually we kill the tree. Okay, because tree is a living being for the poet, and of course, it is a living being. Okay, a tree has life because it takes birth, it grows, and it dies. So, of course, these characteristics are of living being, है ना? But one problem is there. Just like we human being, we can move from one place to another place. A tree can't do that. Well, so I'm going to share my screen with you so that we can start today's session. Okay, so yes, the screen is shared, and I hope you are able to see the screen. Okay, so let us have a look on the previous slides so that जो पहले पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में आ जाए एक बार, है ना? ये है वो महान लेखक, कवि हम कहेंगे, पोएट है तो वो पोएट भी थे, हैं वो प्ले राइट भी हैं, पेंटर हैं वो, फिजिशियन है, मल्टी टैलेंटेड. ठीक है, इंट्रोडक्शन भी याद आ गया होगा, है ना? So a tree is a precious thing for us, and we should treat tree as our family member. Okay, then what will happen? You don't harm your family member. हम अपने family member को कभी harm करते हैं क्या? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते. तो जब अगर ट्री को आप अपना फैमिली मेंबर मानोगे तो उसका हार्म नहीं कर सकते आप, है ना? ओके, सो अभी तक जो हम समझ पाए हैं या फिर मतलब व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, व्हाट वी हैव गॉट इज दैट इट इज नॉट सो इजी टू किल अ ट्री. द पोएट सेज नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. मतलब आप छुरी के एक जैब से, एक चाकू के एक जैब से आप एक ट्री को नहीं मार सकते, है ना? इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ठीक है, एक ट्री को इसके एक्चुअल शेप में आने के लिए कई दिन लगता है ना? राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन टू इट्स young age, it takes a lot of time, and of course with the help of earth, air, sunlight, water, it grows. Okay, just like us, we are also dependent on earth. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना? और पोएट ये कहते हैं कि इफ यू कट अ ट्री बट इफ यू कीप द रूट as it is, then what will happen? It will grow once again and it will take its former size, है ना? ये भी याद आ गया होगा अभी आप सभी को, है ना? ये जो था सेकेंड स्टैंजा, सो हैक एंड चॉप but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Curled मतलब curly. ठीक है, जहां से आप पेड़ को काट दोगे वहीं से एक नया जो है ग्रीन ट्विग्स जन्म लेगा, और फिर वो धीरे धीरे अपना जो पिछला रूप है वो धारण कर लेगा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा हिंदी हो गया. सो द ग्रीन ट्वाइग्स विल टेक द फॉर्मर साइज, है ना? इट विल ग्रो टू इट्स फॉर्मर साइज. फॉर्मर मतलब
पहले जो पहले कुछ होता है, पहले का जैसे अभी इंडियन टीम का अभी का कैप्टन कौन है? विराट कोहली। इसके पहले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी फॉर्मर कैप्टन हो गए, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टैंजा, and this is new for you. Well, so in the third stanza, what does the poet say? No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out of from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and weight. Okay, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Okay, so I hope you have got something, you have understood some things. Like now the poet is saying, ki only hack and chop, if you cut the tree, then the tree is not going to die. So what you need to do to kill a tree, you have to pull out. Okay, that means you have to uproot the tree. Okay, so we know that root is the most important part of a tree. Just like if you if you pull out the tree, if you uproot a tree, then of course the tree will die. So poet is telling you how to kill a tree, but that doesn't mean that you will kill a tree. This is called irony. So इस पूरे पोम का जो एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, मतलब ये पोम पोम का भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस कंप्लीट पोम का जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आयरनी, ठीक है। IRONY. Okay, so the poet, what he is saying, you must not follow that. ठीक है, वो उल्टा ही कह रहे हैं ना। तो now how to kill a tree? Very simple. I mean simple नहीं है, लेकिन आप जान गए हो कि आप ट्री को कैसे मार सकते हैं, है ना। You have to Sir. yes Sakshi, you have to uproot the tree, ठीक है। रूट जो है वो उसे जड़ से उखाड़ के आपको फेंकना है, तब जाके एक ट्री मरता है, ठीक है। सो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग यू नो दैट एंकर वर्ड जनरली जो है एंकर का यूज शिप में होता है, कुछ ऐसे शेप में रहता है ना। तो ये, हाँ, ये एंकर का काम क्या होता है, शिप को एक जगह मतलब जैसे मान लो समुद्र में कभी कहीं आप हो, शिप को एक जगह उसको स्टिल रोकना है उसको, तो आप एंकर नीचे गिरा दो, वो समंदर के एकदम नीचे जाके फंस जाता है और शिप जो है वहां रुक जाता है। तो यहाँ पर एंकरिंग मतलब अटैच। एक ट्री जो है वो अपने रूट से अर्थ को जकड़ के रखता है, अकड़ के रखता है ना, अटैच रहता है। सो यू नीड टू demolish, you need to break, you need to destroy the anchoring, ठीक है। तो वो ट्री मर जाएगा। सो यू कैन सी द इमेज, you can see the cruel people, and these people are not different from us, ठीक है। सबसे जो दुख की बात है, इस इमेज में जो लोग देख रहे हैं वो हमारे जैसे ही लोग हैं ना। सो वी आर किलिंग एंड वी आर किलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out. So, if you have seen the process of cutting tree, then you must know कि एक ट्री को कैसे काटते हैं। फिर उसे, अब देखो इस इमेज को देख लो, समझ में आ जाएगा। पहले पेड़ के चारों तरफ गड्ढा करते हैं और उसके रूट्स को एक एक करके खींचते हैं, काट देते हैं। स्नैप्ड मतलब चॉप, चॉप करना, है ना। सो in this way you can kill a tree.
ठीक है. Another thing he's sharing with us, that is, or pulled out entirely out from the earth cave. Okay, now see, uh, in this picture you can see that the tree is quite grown up tree, and it has you know very nice roots, strong roots. So it is not possible to pull all the roots. ठीक है, so what we will do, we will cut the roots. ठीक है, snap कर देंगे हम लोग उसको, roots को. और अगर कोई छोटा मोटा ट्री है, उसे हम लोग ऐसे जोर से पुल करेंगे तो वो अर्थ से बाहर आ जाएगा. ठीक है, जमीन से मतलब वो बाहर आ जाएगा. तो दो तरीका है, एक तो आप जड़ को काट दो, या फिर यू जस्ट uproot द ट्री एंटायरली. ठीक है, डोंट लीव एनी रूट इनसाइड द ग्राउंड. ठीक है, अर्थ के मतलब यहाँ पर ऑफ कोर्स जहाँ पर ट्री का रूट्स फैला हुआ है अंडरग्राउंड. ठीक है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. Yes, exposed here you can see. Generally, we use the word exposed when something is not secret. ठीक है, जब कुछ चीज रिवील हो जाता है उसे हम एक्सपोज्ड कहते हैं. और जनरली एक्सपोज्ड जो है वी यूज फॉर नेगेटिव थिंकिंग, है ना. लाइक यू नो, वायरल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट एक्सपोज जो है वो ज्यादातर नेगेटिव के लिए यूज होता है. हम लोग कहते हैं ना, देखो वो तो पूरा एक्सपोज हो गया, मतलब उसे सीक्रेट रखना था लेकिन वो रख नहीं पाया, वो एक्सपोज हो गया. तो यहाँ पर एक्सपोज कौन हुआ? ट्री. ट्री का जो रूट्स है वो एक्सपोज हो गया. ठीक है, मतलब यू हैव पुल्ड आउट द ट्री फ्रॉम अर्थ केव. ठीक है, ओके. एंड देन लास्ट थ्री लाइन्स, कैन यू टेल मी the last three lines, uh, what part of the tree, what part of the tree is being referred by these three lines? Okay, so can you tell me, anyone in the class? The question is simple. What about the three lines? No response. Last three lines are saying about which part of the tree? Oh my God, there is big sannata. Yes, let me see why there is sannata. Yes, Bhavik Jain, Bhavya, Bhumi, what happened? Garvik, Gaurav. लास्ट का तीन लाइन एक बार चलो मैं पढ़ लेता हूं दोबारा. द सोर्स, वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, hidden for years inside the earth. Roots of the tree? Exactly. Nice. Very nice, Sakshi. बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, तुम लोग भी कुछ रिस्पॉन्स दो, कुछ तो बोला करो. सिर्फ मैं ही बोले जाऊं कैसे चलेगा. चलो अब रीडिंग कराता हूँ, रुको. वेल सो यू नो, पोम जो है वो एक्चुअली रीडिंग नहीं होते हैं, पोम साइट कर. Yes, mute yourself if you are not saying anything important. Well, so of course, the last three lines of this stanza refer the root of the tree. Okay, white. So yes, of course, the color of root, basically the color of root is white, and it is also wet. Wet मतलब you know gila, उसमें नमी होता है रूट में. द मोस्ट सेंसिटिव, ऑफ कोर्स आप ट्री के स्टेम को काट दो यहाँ से तो वो ट्री नहीं मरेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से उसे जमीन से उखाड़ देते हो फ्रॉम अर्थ, if you uproot the tree then it will die. So of course the sensitive part of the tree is root, more sensitive, है ना, or you can say most sensitive. एक बार तो मतलब बिना लिफ के भी पेड़ बच जाता है ना, यू नो ड्यूरिंग समर टाइम
we can see that maximum trees totally leafless, but फिर भी पेड़ जिंदा रहता है, लेकिन अगर रूट नहीं है तो पेड़ जिंदा नहीं रह सकता है, लाइफ लाइन है ना. Hidden for years inside the earth. Yes, we know that a tree takes time to grow up, है ना. वो जब तक वो ग्रो होता है तब तक तो रूट अर्थ के नीचे ही रहता है ना. So it's very simple to understand. But again, I'm saying that poet is not telling us to kill the tree, है ना. इसे मत भूलना. Well, now this is the last stanza, and okay, who is there to recite the stanza? Anyone is there who will recite the stanza? Otherwise, I will have to ask. Okay, let me ask. Tanmay, Tanmay, 624 guest. Admit yourself. Yes, sir. Okay, yes, recite the stanza. Yes. Then the matter. Sir, Yes, you are going to start. sir. Okay, I don't know what's wrong with Tanmay. So the last stanza, and then we will come to know about rhyme scheme and poetic devices, or you can say figure of speech, or you can say literary device. तीनों एक ही होता है. Then the matter of scorching and choking in sun and air. You can say also choking. ठीक है. Browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Well, so in the last stanza, we can feel the concern of the poet. Okay, so till now, what does the poet say? What does the poet express? The poet expresses that how to kill a tree. The process is you have to uproot, you have to pull the tree out from the earth, है ना. एंटायरली आपको एक भी रूट नहीं छोड़ना है, उसे एंटायरली उसे उखाड़ना है. You have to pull it out, then only the tree will die. Now now what is there in this slide? Then the matter, मतलब what matter actually. So you just see the image of the tree. You can easily understand the tree is dead now, and there is no chance, there is no chance for the tree to grow up again. It is totally dead. ओके, कुछ भी कर लो आप, इस ट्री में कभी लाइफ वापस आ ही नहीं सकता. तो इसी मैटर की बात कर रहा है. देन द मैटर of scorching and choking in sun and air. Scorching and choking का मतलब क्या है? The drying up of the tree after being uprooted. Yes, uproot करने के बाद आप ट्री को छोड़ दो. अभी आपको और कुछ नहीं सोचना है, बाकी का काम कड़क धूप जो है वो कर देगा. धूप में आप उसे रखे रखे रहो. So the scorching मतलब extreme heat of the sun, बाकी का काम सन लाइट कर देगा, है ना. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग. सो ट्री, इसके बाद उसे जब आप अपरूट करने के बाद उसे आप छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा और वो और मजबूत होते जाएगा. क्योंकि धूप में यू नो व्हेन यू कीप एनी, आई मीन जो ये पेड़ है, ट्री है, वो धूप के हीट से वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. ठीक है. एंड ट्विस्ट भी होता है उसके जो
ब्रांचेस है या उसकी जो स्टेम है वो ट्विस्ट होता है ना। एंड विदरिंग का मतलब क्या होता है? बिकम ड्राई एंड श्रिवल्ड। Yes, of course. If you can see the image tells all the thing. ये पेड़ जो है जब ये जिंदा था तो कितना अच्छा हरा भरा रहा होगा पेड़, लेकिन अभी क्या कंडीशन? सजावट दिखाओ, ये देख 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 आके बोल नहीं। Okay, I don't know why there was noise. Well, so now you are successful. You have killed a tree. That is poet saying. Okay, and then it is done. It is, that means killing the tree. क्या पूरा हो गया? पेड़ को मारने का प्रोसेस। ठीक है? So in this way, the poem ends. Now we need to know the rhyming scheme, or you can say rhyme scheme. So yes, my dear students, what is the rhyme scheme? Can you tell me? Just look at the first stanza. And how to find the rhyme scheme? You just have to see the words at the end of the line. If it matches, then it has a rhyme. But if it doesn't match with sound, then there is no rhyme scheme. So what do you think? Last word: tree, knife, grown, earth, feeding, absorbing water, hide, lives. So do you find any regularity in the rhyme scheme? Yes, my dear students, kuch to response do. Don't be dumb. Okay, now you are allowed to unmute yourself. Yes, Kavya is there. You want to say something, Kavya? Sir, feeding and absorbing. But in the whole stanza, only two words are, matching with the sound. So, but you need to see that any other regularity is there. If it is not there, then it doesn't follow any regular pattern. ठीक है? राइम स्कीम तभी होता है जब कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है। अब बीच में दो लाइन होने से वो कोई राइम स्कीम नहीं होता है। ठीक है? That's a good observation. You have found something different. Well, anyone else? Do you find any regular rhyme scheme? बाकी सब गूंगा हो गए हैं. They are deaf, they are dumb, deaf and dumb. Okay, my dear students, please give me a reply. Has there any regular pattern of rhyme scheme? Yes or no? No. नो सर। चलो अभी तो आ रहा है दो चार लोगों का. यस, आपका आंसर जो है सही है. अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब बताओ. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? कल मैंने इसको सोचा, इस सेंटेंस को बनाया. If you nail a nail with a nail, the nail will break the nail. किसी को समझ में आएगा? If you nail सर a nail with a nail, the nail will break the nail. सर आई कैन ट्रांसलेट इट इन हिंदी। हाँ, बोलो बोलो. अगर आप नाखून को नाखून से नाखून मारोगे तो नाखून नाखून को तोड़ देगा। गुड गुड, वेरी गुड. बट इसमें से मेरा एक जो नेल था वो एक्चुअली कील था. तो कील से अगर आप नाखून को, नेल वर्ब जैसा भी यूज होता है, मतलब नेल नाउन भी है, नेल वर्ब भी है.
मतलब एक नाखून पे अगर कील मारोगे तो कील जो है नाखून को तोड़ देगा। चलो ठीक है, अच्छा लगा किसी ने एज्यूम किया, वेरी नाइस। वैसे तुम्हारा वाला भी अच्छा है। अगर नाखून से नाखून को क्या करेंगे, क्या बोले थे, भूल गया मैं। फिर से एक बार। अगर आप नाखून को नाखून से नाखून मारोगे तो नाखून नाखून को तोड़ देगा। नाइस नाइस। अच्छा, ये जो लाइन है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ होगा? मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है सिमिली, मेटाफोर, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन। सर रिपीटेशन Repetition. एंड पर्सोनिफिकेशन। नहीं बेटा, पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ है, रिपीटेशन हुआ, क्योंकि नेल वर्ड सेम वर्ड रिपीट हुआ है, तो ये इजीली समझ सकते हैं ये रिपीटेशन है। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह के सेंटेंस लेके और हाजिर रहेंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं राइम स्कीम। yes, there is no regular pattern of rhyme scheme, so that's why it will be considered as free verse। ठीक है, याद रखना, जिस पोम में कोई राइम स्कीम नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। ओके, don't forget it। well, now as you know that each and every line of the poem should have one literary device, more matlab at least one literary device। it can have more than one literary device। okay, so first, it takes much time to kill a tree। so t letter is repeated many times, almost 4 times। so जब सेम लेटर से स्टार्ट हुआ वर्ड रिपीट होता है तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं। अलिट्रेशन और रिपीटेशन में कंफ्यूज मत होना, है ना। रिपीटेशन मतलब पूरा पूरा वर्ड रिपीट होना चाहिए, जैसे कि मेरा वाला लाइन था, इफ यू नेल अ नेल विद अ नेल द नेल विल ब्रेक द नेल। सो ये रिपीटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। इसमें क्या है कि यहाँ से लाइन ब्रेक हुआ है ना। ये कंप्लीट लाइन क्या होता कि नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। तो जहाँ लाइन ब्रेक होता है वहां पर हम लोग कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज कर सकते हैं? enjambment। ठीक। and apart from enjambment you can also say that here o, not, of, then a, jab। तो जो vowel साउंड रिपीट होता है तो उसे हम लोग कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलते हैं? कोई बता सकता है मुझे? when the vowel sound is repeated in the line, which poetic device it is called? कोई तो बताओ, फिर सो गए, जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है, 5 मिनट बचा है। सर डोंट नो। प्रियांश जैन, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, वो एसोनेंस है ना। एनाफोरा डिफरेंट है। एनाफोरा जब कोई फ्रेज रिपीट होता है हर लाइन के शुरू में। चलो ठीक है, गुड एफर्ट। एसोनेंस यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर है एसोनेंस। नेक्स्ट क्या है? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। सो कंजम्पशन जो है वो एक्चुअली लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है ना। तो जनरली कंज्यूम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। वी आर कंज्यूमिंग नेचुरल रिसोर्सेस। तो ह्यूमन बीइंग के साथ ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी यहाँ रखा गया है ट्री के साथ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। देन एसोनेंस, एसोनेंस क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द वावेल साउंड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, इसमें भी वही है, तो ये दोनों लाइन एसोनेंस। उसके बाद अगेन एंजैम्पमेंट बिकॉज देयर इज लाइन ब्रेक, years of sunlight, air, water and out of its leprous hide। okay, अच्छा, do you know that लेप्रोसी, किसी को पता है लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है लेप्रोसी क्या है, लेकिन उसका इंग्लिश नहीं पता। यस, anyone is there? No one is there?
नहीं पता सर। कैसे नहीं पता, पता करना चाहिए। एक्चुअली इट इज अ डिजीज, ठीक है, लेप्रोसी क्रॉनिकल डिजीज है, इन्फेक्शन वाला डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लेप्रस हाइड मतलब आप जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके आप बार्क को देखोगे तो वो एकदम क्या बोलना चाहिए, कैसा दिखता है, एकदम खुरदुरा, मतलब कलर डल होता है, मतलब कीड़े लग जाता है ना बार्क में, एक्चुअली कई तरह के कीड़े लग जाते हैं उसमें, तो फिर वो डिजीज्ड वाला लगता है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर लेप्रस का यूज किया गया था। लेप्रस हाइड मतलब उस ट्री का जो बार्क है ना, दैट इज इन्फेक्टेड, है ना, इन्फेक्टेड बार्क है। हाँ परी करेक्ट, इट इज अ डिजीज लेप्रोसी। ओके नेक्स्ट, 3 मिनट बचा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट, सो हैक एंड चॉप, तो इसे एसोनेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लाइन में क्या है, एंजाइममेंट है, बट दिस अलोन ऑन डू इट, मतलब ये जो एसोनेंस और एंजाइममेंट है ये दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। एक्चुअली ये सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन ऑन डू इट, ये एक सिंगल लाइन है, तो एंजाइममेंट एसोनेंस दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। द ब्लीडिंग बार्क, सो यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क मेटाफोर है। जनरली बार्क से कोई खून तो नहीं निकलता है ना, ठीक है। तो बार्क को कैसा बोला जा रहा है, ब्लीडिंग बार्क। और एक इसमें आप यूज कर सकते हो, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। शायद तक मैंने इसको नहीं समझाया है, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। मतलब सिंपल है, जब कोई नाउन एडजेक्टिव के बाद आता है, ब्लीडिंग जो है वो एडजेक्टिव हो गया और बार्क नाउन हो गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, यहाँ पर वही एसोनेंस है ना, पोएट जो है एसोनेंस का यूज बहुत किए हैं। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्वाइस मिनिएचर बॉस, एंजाइममेंट है, एंजाइममेंट। सो एंजाइममेंट इस पोम में जो कॉमन लिटरेरी डिवाइस दिख रहा है वो एक एंजाइममेंट हो गया, एक एसोनेंस, ठीक है। अब तुम लोग के लिए टास्क है, 2 मिनट बचा है, जल्दी से इस टास्क को पूरा करो। और कई बच्चे क्लास छोड़ दिए हैं, वेरी नाइस, क्या बात है, मतलब देश का भविष्य है। हाँ तो बताओ भाई, ये पहला लाइन है, देन द मैटर, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा इसमें। देन स्कॉचिंग एंड चोकिंग, देन इन सन एंड एयर, उसके बाद है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स विथ वाइट एंड वेट। सो आप आंसर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, आप नंबरिंग करके भेज सकते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। Okay, so my dear students, do it fast. We don't have much time, less than 1 minute. Sir, Yes, Shikal. sir, please show the slide before this one. But beta, there is no time. Okay, sir. 1 मिनट बचा है, मतलब इसको जितना हो सके समझ के करो, जल्दी से बताओ, मुझे आंसर भी दिखाना होगा, या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इसका आंसर। नेट का हेल्प मत लेना, जितना हो सके अपना दिमाग का यूज करो, ओके, क्योंकि सबके पास दिमाग होता है। हाँ भूमि, तुम्हारा आंसर सही जा रहा है, लेकिन मुझे सबका आंसर चाहिए, तो कोई बात नहीं, टेक अ स्क्रीनशॉट and get the answer and we will discuss tomorrow, okay।